Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of Associate Degree Program of second semester, this is lecture number 6 and we are going to continue with the written communication, and we are now starting the second topic from your course that is related with essay writing. In today's lecture, we are going to cover the following learning objectives, and these are: first, I will tell you what is the origin and meaning of essay, then, types of essay. We will also look at the parts and structure of essay. Then, I will tell you how to write an essay in 7 steps. And finally, I give you home task. So, I start with the origin and meaning of essay. Uh, if you could see that the word essay, it is derived from the French word, and the word which is in the verb form, it is essayer. Essayer means to try or to attempt. See, so but when you convert it into noun, the word is ESSAI, essay, which means trial. See, so when we say write an essay, it means that you make an effort, you try collecting points, and then you give them a final shape. See, so this is the origin and the literal meaning of the word essay, first in verb and then in noun. All right, so we get to someone who has actually gave this kind of term to a particular writing. It was again a Frenchman whose name were Michel de Montaigne. He was a very famous essay writer during the 16th century, and he was the first author to describe his work as essays. And he had written these essays. They were very famous, and then later on many writers from England and the other parts of the world copied this person. See, so he called his writings as attempts. See, so attempts means trial, effort. So we go back to its literal meaning, and that is what essay is. सो ऐसे का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखने की कोशिश करना, यानी अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को एक पूरी हार्मनी और यूनिटी के साथ जब आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एन essay, right? So now what is the definition, or you can say what is the detailed meaning of this word is, this term is that an essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. Well, in essay, writer usually picks up a topic and then collects the points related to that. So it is his personal effort that he does, and it's not that easy a task. So we will look at it in detail in the coming slides. There are many forms of essay, you can say. Even if there is an article in the newspaper, editorials are there, newspaper reports, research articles, then even stories, you can say that how they are formed. The narrative stories are there, you can say the narrative paragraphs are there. So all these are called actually essay, and essay is something that can be formal as well as informal. Formal means over here that something that you write and it is basically given given marks, or that is given some kind of grading in which the way you write is evaluated, it is checked, it is marked, there are remarks on that. So whenever you do whenever you write an essay in the academic context, in some formal context, it is basically, we call it the formal essay writing. See, we are going to now look at writing an essay, which is, I already told you that it's a challenging task. uh, it seems that it is very easy, and sometimes I have seen students, they pick up the paper and then start writing essay directly. No, actually the essay is something that is in the
that requires a lot of thought, a lot of attention, a lot of focus. And if you could see in this image that on the left side you see the crumpled papers, and then when you come to the right side there is a blank sheet of paper. Now basically what it suggests, इस सब का मतलब ये है कि ये जो crumpled papers हैं ये वो ख्यालात हैं जो आपके पास हैप फॉर्म में दिमाग में मौजूद हैं, या आपके उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस है ना कोई रब्त है, देयर इज़ नो कनेक्शन इन दोज आइडियाज, इन दोज पॉइंट्स, इन दोज आर्ग्यूमेंट्स दैट यू वांट टू राइट अबाउट अ सर्टेन टॉपिक. अब आगे आप देखें तो एरो उन्होंने बनाया है मार्कर्स या पेंसिल या किसी राइटिंग की चीज़ के साथ जिसके साथ आप लिखते हैं. यानी कि अब आपने ये करना है कि दिमाग से इन क्रम्पल्ड ख्यालात को, इन हैप इन कंफ्यूज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड ख्यालात को जब आप बाहर निकालते हैं और इसको लिखते हैं किसी शीट के ऊपर, तो वो एक प्रॉपर एस्से की शक्ल इस तरह बनती है कि उसकी तरतीब होती है. देन इट हैज़ a sequence, it has an order, it has something that attracts the attention of the readers. तो वो जो एक हार्मोनाइज्ड डॉक्यूमेंट है या जो एक कोहेरेंट डॉक्यूमेंट है या वो जो एक यूनिफाइड डॉक्यूमेंट है जो किसी एक टॉपिक की तरफ इशारा करता है, तो उसको हम कहते हैं एस्से, राइट. अब एसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें से 4 टाइप्स ऑफ ऐसे, जिस तरह कि हमने पैराग्राफ वाले लेक्चर में ये बात देखी थी कि देयर वर 4 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ. इसी तरह से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे. बेसिकली पैराग्राफ और ऐसे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ अगर ख़यालात को आप ज़रा लिमिटेड करके एक ही टॉपिक के ऊपर ख़यालात को एक जगह पर रखते हैं तो वो पैराग्राफ बन जाता है. लेकिन जब आप उसको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स में, उन्हीं ख्यालात को डिटेल देते हैं, तो वो ऐसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं. ऑलराइट, सो वी कम टू नो दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऐसे. अगेन नैरेटिव, जो कि किसी वाक़े के बारे में बताता है. नैरेटिव मीन्स कि इट टेल्स अ स्टोरी. फिर डिस्क्रिप्टिव में आपने किसी चीज़, किसी मकाम, किसी इवेंट, किसी प्लेस, किसी सीन को डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में बताना है, डिटेल्स देनी है ताकि पिक्चर क्लियर हो, अगले को यूँ लगे कि वो भी उसको देख रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे. फिर एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उसको हम एक्सपोजिटरी एसेज कहते हैं. एंड देन परसुएसिव एसेज इन विच वी वांट टू कन्विंस द ऑडियंस अबाउट आवर पॉइंट ऑफ व्यू. और इस परसुएसिव एसे को हम आर्ग्यूमेंटेटिव एसे भी कहते हैं. See, where we give the argument in favor of the point that we have to make or the topic that we have selected. So there are main 4 types of an essay. अगर हम parts और structure of essay की तरफ चले जाएं तो इसके again अगर आप broader level पर देखें तो it has 3 parts. ये देखिए, number 1 that is introduction. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हम लिखते हैं, इट हैज़ जनरल स्टेटमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक. और फिर क्या होता है कि उसके अंदर एक थीसिस स्टेटमेंट होती है. थीसिस स्टेटमेंट जिस तरह से पैराग्राफ में हम कहते हैं कि टॉपिक सेंटेंस होता है या मेन आइडिया जिस सेंटेंस में दिया जाता है, वही चीज़ को आप जब एस्से में लिखते हैं तो पहले पैराग्राफ में वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनती है. यानी कि किस आपका टॉपिक के बारे में जो आपने एक पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसमें टॉपिक की तरफ आप आते हैं, उसको हम कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट. एंड इट लिस्ट्स द मेन आइडियाज़ इन द एसे. तो अगर आप ये देखें तो एरो के साथ कि ये बेसिकली एक 2 इन्वर्टेड ट्रायंगल्स हैं जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आते हैं. ये नहीं वाइड जो या ब्रॉडर लेवल से आहिस्ता आहिस्ता हम आते हैं स्पेसिफिक यानी अपने टॉपिक की तरफ. तो जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पहले हम एक बड़ी पिक्चर दे के एक जनरल इंफॉर्मेशन दे के और फिर हम आते हैं आहिस्ता आहिस्ता फोकस. और यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड जो आपका हिस्सा है ऑफ द पार्ट ऑफ योर एसे, इट इज़ कॉल्ड बॉडी पैराग्राफ्स. बॉडी पैराग्राफ्स का मतलब ये हुआ कि अब हमने जो सपोर्टिंग डिटेल्स देनी है अपने मेन आइडिया के बारे में, तो उसमें पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, ये आपको मैं एक मिनिमम एक रिक्वायरमेंट बता रही हूँ एक एस्से की, कि एक एस्से जो बेसिक एस्से है अगर उसके आइडियली स्पीकिंग
5 ओवरऑल पैराग्राफ्स होने चाहिए, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी के 3 पैराग्राफ्स, यानी कि 3 डिफरेंट पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करना होता है उन बॉडी पैराग्राफ्स में। और हर बॉडी पैराग्राफ का पहली लाइन यूजुअली उस पैराग्राफ के बारे में टॉपिक सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम मोबाइल फ़ोन्स के यूजेस की बात करें, यानी कि उसके एडवांटेजेस की बात करें, तो फिर पहले तो हम जनरल बात करके इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड अ लॉट एंड देन द वर्ल्ड हैज़ कम इनटू आवर हैंड्स एंड इट्स बिकम वेरी रैपिड एंड स्मार्टफोन्स और द मोबाइल फोन्स आर द वंस। अब ये देखें, थीसिस स्टेटमेंट आपने बनाई कि मोबाइल फोन्स आर द वंस विच आर दी वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, ऐसे करके फिर आप आ जाते हैं बॉडी पैराग्राफ। अब आपने बॉडी पैराग्राफ में जहन में पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि अच्छा मैं पहले इसके यूजेस के बारे में ये बात बता दूंगी कि ये किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, द इन्फॉर्मेशन टू गैदर इन्फॉर्मेशन, फिर टू कनेक्ट विद द पीपल। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनको अब आपने एक्सप्लेन करना है इन 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो आपने बेसिकली 3 पैराग्राफ्स अगर बना लिए तो हर एक में एक नया पॉइंट होगा। अब अगर आप देखें तो कंक्लूजन जो है, कंक्लूजन हर चीज़ में, इवन आप देखें पैराग्राफ में भी, आई टोल्ड यू देयर हैज़ टू बी ऑलवेज अ कंक्लूजन। सी, तो कंक्लूजन के बगैर तो आप कोई पैराग्राफ या कोई एस्से या इवन कोई क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दे सकते, वो भी यूजुअली एस्से या पैराग्राफ की शक्ल में ही होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप क्या करते हैं कि हम ब्रीफ समरी ऑफ द मेन पॉइंट्स ऑफ द एस्से दे देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिक से फिर जनरल की तरफ चले जाते हैं। आप ये देखिए, ये जो नीचे वाइड एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, इट सिग्निफाइज कि अब हम उसको दोबारा से, जिस तरह से इंट्रोडक्शन में हमने स्टार्ट लिया था, तकरीबन उस तरह से एंड करेंगे, यानी कि दोबारा से हम जनरलाइज कर देंगे, स्पेसिफिक बात वहाँ ख़त्म हो जाएगी और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता उसको जनरलाइज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देयर आर देन इट मीन्स कि इंट्रोडक्शन के अंदर जनरल स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट होती है, यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये 1 ए है। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लूंगी। और ये जो है इट इज कॉल्ड 1B। 1 का मतलब हुआ कि इंट्रोडक्शन और उसके 2 पार्ट्स। ठीक है जी, थीसिस स्टेटमेंट यानी मेन आइडिया उसका जो है वो क्या है। देन बॉडी पैराग्राफ के अंदर देयर आर 3 पैराग्राफ्स, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2A, देन 2B यानी उसके ये सेकंड पार्ट, एंड 2C, और फिर कंक्लूजन में एक ही छोटा पैराग्राफ होता है। अब ये पैराग्राफ्स की लेंथ जो होती है, जो थोड़ा सा इनिशियल लेवल के ऊपर, बहुत ज़्यादा लेंथ आपके लेवल के ऊपर नहीं होगी, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन को आप 5-6 लाइंस का कर रहे हैं, देन बॉडी पैराग्राफ्स शुड नॉट बी मोर देन ऑफ बिटवीन 8 to 10 लाइन्स। हर पैराग्राफ 8 to 10 लाइन्स का होना चाहिए, यानी इसका मतलब है कि तकरीबन 30 लाइंस जो हैं वो आप अपने मेन बॉडी की बना लेंगे, 10-10-10 ऑफ ईच पैराग्राफ। और अगर आप 5-6 इसकी बना लें तो ये तकरीबन 12 लाइंस दोनों की मिला के होती हैं। तो तकरीबन 50-60 लाइंस होती हैं एक कॉलेज लेवल के एस्से की, जिसमें 300 to 350 वर्ड्स या 200 to 250 वर्ड्स के करीब आप कह सकते हैं कि वर्ड लिमिट होती है। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। कि अच्छा, अभी ये बात मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, बट आई एम जस्ट गोइंग टू गो वेरी क्विक इन दैट कि स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन ये होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिससे आप स्टार्ट लेते हैं, वो होता है हुक। अब हुक क्या चीज़ होती है? देखें, हुक का वर्ड का मतलब ये है कि फंसा लेना। अब फंसा कैसे लेते हैं आप? अब जैसे आप तकरीरें सुनते हैं या आप किसी किस्म का कोई मटेरियल पढ़ते हैं, तो हमेशा जो स्पीकर को भी और राइटर को भी ये कहा जाता है कि इनिशियल लाइंस इस तरह से आप सेटअप करें कि आपके जो रीडर है या आपका जो सुनने वाला है, वो उसकी अटेंशन आपने अपनी तरफ खींचनी है। ठीक है, तो हुक का मतलब ये हुआ कि आपने किस तरह से अटेंशन ग्रैब करनी है, अटेंशन को कैच करना है ऑफ द रीडर और ऑफ द लिसनर। ठीक है, अब हुक के बाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन में एक ब्रिज आप बनाते हैं। ब्रिज का मतलब होता है अगेन कि उसके दरमियान एक लिंक पैदा करते हैं, एक सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं, और फिर आखिर में हम थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। थीसिस स्टेटमेंट का वही मतलब हुआ कि हम टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो ये एस्से का फर्स्ट पैराग्राफ की मैं बात कर रही हूँ।
अब एक एग्जांपल जैसे मैंने उठाई है कि डिफरेंट कलर्स आप देखें कि जो ऑरेंज कलर में हुक क्या बनाया है कि एक सेइंग उठाई है कहीं से, यानी कि कोई बात हमने की है ताकि रीडर जो है वो थोड़ा सा उसकी तरफ अटेंशन उसकी हम ले लें कि वन लेजेंड हैज इट दैट सर आइजक न्यूटन केम अप विद हिज आइडियाज अबाउट ग्रेविटी आफ्टर ही वाज हिट ऑन द हेड बाय अ फॉलिंग एप्पल। अब ये बड़े एक कैजुअल वे में आप कह सकते हैं कि किस तरह से एक अटेंशन रीडर की अपनी तरफ की है बाय दिस हुक। हुक का मतलब फिर मैं बता दूं, इसका मतलब है अटेंशन सीकिंग लाइन, जिसकी वजह से हम रीडर की अटेंशन को या उसको अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, राइट। अब ग्रीन कलर के अंदर ब्रिज है। ब्रिज का मतलब होता है एक लिंक बनाना बिटवीन अ हुक एंड अ थीसिस। तो वो क्या है? इट इज सर्टेनली एन अपीलिंग आइडिया दो थ्रू हैप्पी accident inspiration literally struck him. However, this story and the idea it promotes that luck plays a large role in discovery, that hard work is little more than a fantasy. In reality, chance can occasionally play a positive role in innovation, but mistakes are likely to create more problems than they solve. अब हमने आहिस्ता आहिस्ता हम अपने टॉपिक सेंटेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि यूजुअली लास्ट सेंटेंस ऑफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है किसी भी एस्से के अंदर। यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट यूजुअली, क्योंकि हम एक काइंड ऑफ एक नतीजे पे पहुंचते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में। और थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ही ये होता है कि जो आपका टॉपिक आपसे कह रहा है तो आप उसकी तरफ अब आ जाते हैं, यानी जनरलाइज करने के बाद आप स्पेसिफिक डिटेल्स देने लग जाते हैं और टू द पॉइंट हो जाते हैं। अगर अगर आपको वो ट्रायंगल का एक पॉइंट याद हो कि किस तरह से वाइड से यानी ब्रॉडर से हम फिर आ जाते हैं नैरो की तरफ, ठीक है। तो अब थीसिस स्टेटमेंट इस एस्से की ये बनी है, एस्से का जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है कि केयरफुल हार्ड वर्क इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू डिस्कवरी देन लक इज। तो हम यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी डिस्कवरी के लिए जो है वो एक किस्मत अपना रोल प्ले करती है। नहीं, हार्ड वर्क और उसके उसके साथ जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस चीज़ का, वो चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कोई चीज़ आप डिस्कवर तो बाय लक ही करते हैं, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस जो है वो किस तरह से आपकी हेल्प करता है। तो ये बेसिकली एक मैंने एग्जांपल आपको दिया है किसी एस्से से, ये एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की एग्जांपल लेके, राइट। अच्छा, अभी जब व्हेन आई टॉक अबाउट हुक्स और हुक या ग्रैबर इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ऑफ एसे, तो हुक्स और ग्रैबर्स बड़े टाइप्स के होते हैं। आप किसी भी तरीके से अपना एसे शुरू कर सकते हैं। यानी थोड़ा सा हम देखें कि हुक का क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया कि हुक एक नाउन है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच which means the opening line or lines of an essay. These lines should hook or grab or catch the reader's attention and make him or her want to continue reading. ठीक है ना। जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हम कोई ड्रामा देखते हैं तो उससे पहले आप देखें कि उन्होंने अब ये किया होता है कि हाईलाइट्स एक किस्म की या उसका प्रोमो चलाते हैं वो लोग। हाईलाइट्स तो नहीं कहना चाहिए, वो तो आउटलाइन होती है। उसका वो एक प्रोमो चलाते हैं ना, और उस प्रोमो की वजह से हम क्या करते हैं कि प्रोमो एक एब्रीविएशन है प्रमोशन की, यानी कि प्रमोशन चलाते हैं। तो वो प्रमोशनल वीडियो ये होती है कि उससे थोड़ा थोड़े से उसके बारे में कोई बात करते हैं, कभी एक्टर्स आ जाते हैं, कभी उसमें से कुछ फ्लैशेस उठाते हैं। तो अब हमारा दिल करता है कि हम उस ड्रामे को देखें। अब वो देखने की हद तक वो बात है। अब यहाँ हम राइटिंग की बात करें तो इसमें भी देर आर मेनी अटेंशन सीकिंग डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं, और विच अगर कोई कोई हम यहाँ पे आप में से कोई डिबेटर्स हैं या स्पीकर्स हैं जो कभी फोरम पे डिबेट किया, तो हमेशा आप लोग शुरू का जो स्पीच कभी डायरेक्टली इस तरह नहीं शुरू करते कि द टॉपिक ऑफ माई एस्से या माई स्पीच इज़ दिस। नहीं, पहले कोई वाक्य सुना देते हैं। ये वही मैं बात बता रही हूँ कि हुक आप किस तरह आप कर सकते हैं। कोई वाक्य पहले, उससे रिलेटेड वाक्य सुना सकते हैं। ऑफ कोर्स लिखने में आप 2-3 लाइंस में उसे लिख सकते हैं। फिर आप कोई सीन जो है जो रिलेटेड है आपके टॉपिक के साथ, उसको वो आप बता सकते हैं। देन अच्छा, ये रिपीटेशन आ गई अगेन, सीन। फिर आप देखें कि क्वेश्चन जो है वो समटाइम्स आप एक क्वेश्चन पुट करते हैं अपने ऑडियंस या अपने रीडर से एक सवाल, उसको हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। कि हम जैसे कहेंगे कि हैव यू एवर सीन समवन फ्लाइंग इन द स्काई। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपकी अटेंशन ले लेगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए नहीं होता कि ऑडियंस या रीडर्स को पता नहीं होता,
ये क्वेश्चन किया जाता है उनकी अटेंशन सीक करने के लिए, ठीक है। अब रीडर इंटरेस्टेड हो जाता है। और समटाइम्स कोई कोटेशन आप किसी बंदे की आप उठाते हैं और आप कहते हैं कि जिना सेड इन हिज बुक दिस, और फिर आप लिखते हैं और फिर आप टॉपिक यानी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरह से हुक जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिवाइस है जो कि यूज़ की जाती है to pull the attention of the reader or the audience towards what you say or what you write. See? अच्छा, देखिए मैं पहले भी कहा था कि पैराग्राफ और एस्से में कोई ख़ास फ़र्क इस नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर एक ही होता है, सिर्फ इनकी लेंथ का फ़र्क होता है, ठीक है। अगर आप इस साइड पे देखें तो लेफ्ट साइड के ऊपर तो इट इज़ पैराग्राफ स्ट्रक्चर। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर के में आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला ये है कि टॉपिक सेंटेंस प्लस सपोर्टिंग सेंटेंसेस या इनको सपोर्टिंग डिटेल्स भी कह सकते हैं प्लस कंक्लूडिंग सेंटेंस, इट मेक्स अप अ पैराग्राफ। अब ये इसका आप कह सकते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। अगर इसको मैं बहुत टेक्निकल वर्ड दूं तो ये इसकी कोहियरेंस है, ठीक है, कि इस किस तरह से हमने लॉजिकली इन पार्ट्स को इकट्ठा किया। दूसरी तरफ आप ये देखें कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें भी बेसिकली 3 ही चीज़ें होती हैं, सिर्फ उनके नाम कैसे फ़र्क होते हैं कि हम इस एक को कह देते हैं उसके यानी टॉपिक सेंटेंस को हम कह देते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक हुक लगाएंगे, यानी कि हम रीडर की अटेंशन लेने के लिए कोई किस्सा सुना देंगे, कोई सीन बयान कर देंगे, कोई कोटेशन डाल देंगे, समटाइम्स इवन जोक डाल सकता है बड़े उस तरह अच्छे तरीके से, और कोई क्वेश्चन डाल सकता है। फिर आपने क्या किया कि एक थीसिस स्टेटमेंट जिसको हम पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस कहते हैं उसकी तरफ आ गए। टुगेदर इट मेक्स अप द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। ठीक हो गया। ये पैराग्राफ्स की शक्लें हैं। पैराग्राफ्स का मतलब क्या हुआ कि डिवीजन इन योर थॉट, यानी आपने डिवाइड कर दी अपनी थॉट को डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर। अब बॉडी देखें, बॉडी जाहिर है दैट हैज़ अ लॉट ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ होती है और इसके अंदर जिस तरह वहाँ है ना टॉपिक सेंटेंस वन, हर पैराग्राफ एक टॉपिक सेंटेंस से शुरू होता है। हर पैराग्राफ के अंदर एक ऐसा आइडिया होता है जो उस पूरे पैराग्राफ का अपना एक कंट्रोलिंग आइडिया होता है, ठीक है। उसके अंदर आप अगेन उसी तरह से सपोर्टिंग डिटेल देते हैं उस टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड, फिर कंक्लूड करते हैं उस पैराग्राफ को, ठीक है। इसी तरह से यानी कि पैराग्राफ 1 का टॉपिक सेंटेंस 1, फिर टॉपिक सेंटेंस 2 ऑफ पैराग्राफ 2, टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ 3, और फाइनली आप कंक्लूड करते हैं इन विच यू री राइट द थीसिस स्टेटमेंट और समराइज करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को। तो एस्से का जो आप कह सकते हैं कि एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ पैराग्राफ है, यानी इसके अंदर बार बार पैराग्राफ की वही टेक्निक, वही ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होगी जो कि सिंगल पैराग्राफ में यूज़ होती है। लेकिन चूंकि एस्से हैज़ मैनी पैराग्राफ्स बट दे ऑल पॉइंट आउट टूवर्ड्स वन मेन टॉपिक, यानी कि अगर आपके पास एक टॉपिक है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑफ विमेन या फीमेल्स इन पाकिस्तान, तो आपने इसी से रिलेटेड सारे पैराग्राफ्स लिखने हैं। आपने कोई ऑस्ट्रेलिया की विमेन के बारे में नहीं लिख देना, या आपने कोई किसी और टॉपिक के बारे में यहाँ बात नहीं करनी है, या मेल्स के बारे में बात नहीं करनी है। सी, तो इसको हम कहते हैं कोहियरेंस, मीन्स दैट देयर इज कनेक्शन विच इज विजिबल थ्रू कोहिसिव डिवाइसेस जो आप यूज करते हैं, उसके अंदर लिंक्स डेवलप करते हैं, राइट। I have already mentioned the words, two words, coherence and cohesion in essay, जिसमें how you create unity through links and connectors। तो बहुत से तरीकों से आप essay के अंदर unity create करते हैं। आप उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक करते हैं, यानी कि उनकी तरतीब, अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई वाक़या सुनाना है हिस्ट्री में से, यानी आपने पाकिस्तान के बनने का वाक़या सुनाना है, तो आपकी जो डिटेल्स होंगी वो सारी स्टार्ट होंगी कि कब पाकिस्तान बना या उससे पहले की जो स्ट्रगल, तो वो आप एक ऑर्डर में लिखेंगे, डेट या ईयर वाइज जो स्ट्रगल हुई आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। आप उसको हैज़र्ड नहीं करेंगे कि आपके पाकिस्तान बन गया फिर आप कुछ और बात करें फिर कुछ और, नहीं, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इनकोहेरेंट, ठीक है, यूनिटी नहीं होगी। फिर अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो किसी चीज़ की, तो आप सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस से स्टार्ट करते हैं। आप फ़र्ज़ करें आप अपनी टीचर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो पहले आप उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस देने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी
देखेंगे कि वो किस तरह की उनकी आदतें हैं, फिर किस तरह वो क्लास में पढ़ाती हैं। देख इस तरह आपने इसको ऑर्गेनाइज कर लिया। देन क्लासिफिकेशन। अब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ आइडियाज, यू हैव टू टेक द आइडियाज एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम इन द लॉजिकल ऑर्डर। फिर अगर आप कंपैरिजन कॉन्ट्रास्ट का एसे लिख रहे हैं तो आपने क्या किया कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ अगर आपने उसका कंपैरिजन करना है या उसका कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि डिससिमिलैरिटी, और कंपैरिजन होता है सिमिलैरिटी। तो आपने एक ऑर्डर में जाना है, पहले आप डिससिमिलैरिटी नहीं करेंगे, पहले आप सिमिलैरिटी करेंगे। तो अगेन लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आप लिख रहे हैं आर्ग्यूमेंटेटिव या परसुएसिव ऐसे लिख रहे हैं तो आपने सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट को देना है और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता लेस स्ट्रॉन्ग और आखिर में जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट होता है उसको, जिसको हम लीस्ट इंपॉर्टेंट कहेंगे, वो आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है। अगेन यू हैव टू मेक डिफरेंट पैराग्राफ्स फॉर दीज आर्ग्यूमेंट्स। अब एस्से ज़रूरी नहीं है कि 5 पैराग्राफ्स में हो। अगर आपके एस्से के बॉडी पैराग्राफ्स जो हैं आपके पास 6 पॉइंट्स हैं तो 6 पैराग्राफ्स बनेंगे, लेकिन मैंने आपको वो मिनिमम मेक बताया है कि 3 पैराग्राफ्स में आप लिख लें तो बेटर है। बहुत छोटे बच्चों को सिर्फ 3 पैराग्राफ्स का एस्से देते हैं, जिसमें से एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, एक मेन बॉडी सारे पॉइंट्स उसमें डाल देते हैं और एक इन कंक्लूडिंग। लेकिन यू पीपल आर एट द कॉलेज लेवल रादर यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है ना। तो आप लोगों को मिनिमम 5 पैराग्राफ का एस्से लिखना होता है, मिनिमम, ठीक है। ओके, then how to write an essay in 7 steps? There are some points that I have written over here. That first you need to pick a topic. In this case, in my case, I have given you topic myself. अभी आप होम टास्क में देखेंगे, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमेशा होता है कि कोई टॉपिक आपने ऐसे लिखना है तो पहले एक टॉपिक ढूंढना होता है, ठीक है। उस टॉपिक को ढूंढने के बाद फिर आप उसकी एक आउटलाइन या डायग्राम बनाते हैं अपने पेपर के ऊपर, जिसको हम माइंड मैपिंग कहते हैं। अब माइंड मैपिंग की एक एग्जांपल आप कह सकते हैं, एक स्केच में आपको दे रही हूँ कि जिसमें आप यहाँ पे टॉपिक लिखा, जहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, उसके बाद मेन बॉडी का एक पैराग्राफ हो गया, फिर इस तरह से आप अपने में कुछ वो इस तरह से आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है, और फिर फर्दर सब आइडियाज़ उसमें देते हैं, सब आइडियाज़ देते हैं। तो माइंड मैपिंग या आउटलाइन बनाना या डायग्राम अपने आइडियाज़ की इस तरह करने से, वो जो आपको शुरू की एक तस्वीर मैंने दिखाई थी कि किस तरह से वो जो क्रम्पल्ड या वो जो ऐसे टेढ़े मेढ़े किए हुए कागज़ जो हैं, किस तरह से, कागज़ का मतलब वहाँ पर ये था जो हमने बॉल्स ऑफ पेपर दिखाए थे, यानी आइडियाज़, वो भी रफ फॉर्म में हैं। तो किस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लाइन अप होते जाते हैं जब आप उनको एक डायग्राम की शक्ल में आउटलाइन देते हैं, और फिर उसके बाद आप एस्से लिखते हैं। कभी भी एस्से को डायरेक्टली नहीं लिखना चाहिए पैराग्राफ्स में। You need to give the mind mapping in the form of a diagram or outline. नंबर 3 पे क्या करेंगे कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फोकस में करेंगे और उसका कोई हुक सोचेंगे कि मैं 3-4 हुक्स में से कौन सा यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन यू राइट योर थीसिस स्टेटमेंट इन इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि आप अब बॉडी पे काम करते हैं, यानी उसके जो मेन पॉइंट सब हैं कि अब जिसको आपने एक्सप्लेन करना है बॉडी पैराग्राफ में, अब उसके 3 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, 4 पैराग्राफ्स बना रहे हैं, और हर पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। और देन यू वर्क ऑन द बॉडी, देन यू राइट द कंक्लूजन। जाहिर है दिस इज हाउ द नेक्स्ट स्टेप इज। देन 6th स्टेप इज अगेन यू सी व्हाट यू डू व्हेन यू आर ओवर विद द राइटिंग प्रोसेस। आपने अब प्रूफ रीड करना है। क्या करना है कि अरेंज दीज, रादर प्रूफ रीड तो भी नहीं करेंगे, आप पहले अरेंज करेंगे सीक्वेंस में। हो सकता है आपका कोई सेंटेंस आगे पीछे हो गया हो या आपकी कोई, तो आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, इसको अरेंज करेंगे, और फिर डिफरेंट लिंक्स या कंजंक्शंस या कनेक्टर्स या जो भी ऐसी चीज़ें जो आपने मिस हो गई हैं या उनको आप रिवाइज करेंगे, उनको देखेंगे और लगाएंगे। और फिर आखिर में क्या करेंगे कि आप फाइनल टचेस देंगे जिसमें आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स, कोई ग्रामर मिस्टेक्स या आपकी अलाइनमेंट, लाइंस ठीक नहीं हुई हुई, पैराग्राफ इंडेंट नहीं हुआ हुआ या ब्लॉक मेथड में नहीं हुआ हुआ। अब 2 तरीके मैंने आपको बताए थे पैराग्राफ राइटिंग वाली स्लाइड्स में, तो उनमें से कोई एक आप लगाएंगे, ठीक है। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है कि वट एवर डॉक्यूमेंट दैट यू राइट या राइटअप आप लिखते हैं, उसको फिर आपने बाद में पढ़ना होता है कि गलतियाँ ना हों उसमें, ठीक है, किसी भी किस्म की गलतियाँ, अरेंजमेंट की, कनेक्टर्स की, अलाइनमेंट की, स्पेसिंग की, किसी भी तरह की गलतियाँ ना हों। अच्छा, अब आपने होम टास्क में आपको दे रही हूँ, वो ये है कि यू हैव टू राइट एन एसे अबाउट, अब जो जो पॉइंट्स हैं उनको, ये की वर्ड्स हैं, इनको आप अपने माइंड में रखना है आपने, ठीक है ना। आपने
350 to 300 to 350 वर्ड्स का लिखना है। और टॉपिक आपका ये है, टॉपिक क्या है? चैलेंजेस इन ऑनलाइन क्लासेस फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। अब आपके पास की वर्ड्स हैं चैलेंजेस, ऑनलाइन क्लासेस, यानी ये कैंपस की क्लासेस नहीं है, और कौन से सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के। ठीक है, तो इनको क्या चैलेंजेस, क्या मसाइल हैं, फिर इसके बारे में आप लिखेंगे एक एस्से, जिसके वर्ड लिमिट इस तरह से होगी, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इतनी लाइंस होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ्स में हर पैराग्राफ में कितनी लाइंस होनी चाहिए, और कंक्लूजन में कितनी लाइंस है। वो जो मिनिमम मैंने आपको बता दिया था कि 60-70 कह लें, या 50 to 70 के दरमियान आप कह सकते हैं। ओवरऑल आपके ऐसे इस लेवल के ऊपर अगर हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, और देयर आर सर्टन थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। नंबर 1 कि आपने क्या करना है कि यू हैव टू फर्स्ट मेक अ माइंड मैप या आउटलाइन ऑफ द एसे, जो आप मुझे दिखाएंगे। ठीक है, पहले वो होगा। फिर क्या होगा कि यू हैव टू थिंक अबाउट अ गुड हुक और अटेंशन ग्रैबर। सोचें कि अपना एसे आप किस तरह शुरू करेंगे कि अटेंशन उसकी तरफ चली जाए, वो 3-4 चीज़ों में से। फिर है जी नंबर 3 पे, मेक 5 पैराग्राफ्स इन टोटल। पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, 3 हो जाएंगे मेन बॉडी के, और 1 हो जाएगा कंक्लूजन का। और फिर आप क्या करेंगे कि आखिर में आप जब लिख लेंगे तो चेक करेंगे अपने एसे को, अलाइनमेंट, यानी उसकी लाइंस अच्छे तरीके से एंड की तरफ ख़त्म हो, हैज़र्ड ना हो, और पैराग्राफ प्रॉपरली शुरू हो। अगर आप इंडेंट कर रहे हैं तो 2 वर्टिकल फिंगर स्पेस दे के फर्स्ट लाइन को पीछे हटाएंगे। अगर आप ब्लॉक मेथड करें तो हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ेंगे। एनीवे, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इन पैराग्राफ राइटिंग लेक्चर। फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या उनके पार्ट सारे आपस में कोहेरेंट हैं, क्या वो उनमें लॉजिकल ऑर्डर है, क्या आपने जो पॉइंट बताए हैं क्या उनका आपस में कोई रब्त, कोई ताल्लुक बन रहा है, उनका सीक्वेंस ठीक है, उनका ऑर्डर ठीक है। और फिर उनमें जो आपने लिंक्स लगाए हैं, यानी कोहीजन जो आपने की है, कोहीसिव डिवाइसेस लगाई हैं, क्या वो ठीक हैं कि नहीं। तो ये आपका एक मैं आपको टास्क दे रही हूँ, तो इसको मुझे करके दिखाइए। और एनी क्वेश्चन दैट यू हैव दैट यू कैन आस्क मी। ये आप लोग एसेस पहले भी लिखते रहे हैं। दिस इज समथिंग नाउ टेक्निकली आई हैव गिवन यू सर्टन नेम्स, दैट्स व्हाट इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग। otherwise I have already told you that students keep writing different paragraphs and essays in the form of long questions, paragraphs in the form of short questions, and then you people read articles or reports or different kinds of essays otherwise in your daily life. So this is how I have tried to give you a technical look on what essay is. All right, so I think so that's sufficient for today. But first, before I finish this, let us look at the learning objectives which I gave in the beginning. Now we know what is origin and meaning of essay, what are types of essay, what are parts and structure of essay, how to write an essay in 7 steps, and then I have given you home task. So that's it for today. Thank you for watching and listening. See you next, inshallah, in another video related to your course. Till then, Allah Hafiz. Stay blessed.